program organized by MMTTC MDU Rohtak in collaboration with Vaish College of Education, Rohtak. I welcome Professor Manish Garg, Director, FTC MDU Rohtak, Deputy Director, FTC MDU Rohtak. I extend my warm welcome to today's guest speaker, Professor Divya Malhan, Director, Career Counseling and Placement Cell, MDU Rohtak. Professor Divya Malhan is an academician by professor. She has 25 years of experience in universities, in different universities. Chaudhry Charan Singh Haryana Agriculture University Hisar, Kurukshetra University Kurukshetra, and presently Maharishi Dayanand University Rohtak in Management Department. Her areas of interest are human resource management, communication, and soft skills. Dr. Divya Malhan has various research papers in journals of repute. She is a professional soft skill trainer. Besides her academic taste, Dr. Divya Malhan has also served All India Radio as an announcer for 13 years. She has also worked with Doordarshan as a newsreader for 5 years. Presently, while serving in IMSAR, MDU, Rohtak for past 15 years. She has also been the soft skill trainer at the Youth Center for Skill Development, MDU, Rohtak for past 14 years. Currently, she is Director, Career Counseling and Placement Cell for past 2 years. She is also Additional Director at Center for Life Skills and Soft Skills. She is also Program Coordinator at Center for Distance and Online Education at MDU Rohtak. Today's Madam will give a talk on the topic Student Diversity and Inclusive Education. I again welcome you, ma'am, in this session. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Jyoti. Before she speaks, I want to take a minute, actually. And first of all, I profusely welcome and thank Professor Divya Malhan and welcome her with a beautiful plant. That's so nice. Thank you so much. Welcome, ma'am. आप लोग देख रहे हैं? Thank you. Welcome, ma'am. Thank you so much. देखिए, एक टीचर के लिए दो चीजें होती हैं डियर ऑडियंस, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। तो टेंजिबल हम एक टीचर के लिए बोल देते हैं कि पब्लिकेशन कितने हुए, प्रोजेक्ट 10 लिए और इतना रिजल्ट आया, इतनी क्लासेस ली, लेकिन कुछ इनटेंजिबल चीजें हैं। ठीक है, एक टीचर का जो है वो बिहेवियर कैसा है, वो बात कैसे करते हैं, वो मोटिवेट कैसे करते हैं, और how he treats or she treats the colleagues, seniors, juniors, उनका पर्सोना कैसा है। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ना इसमें नैक में इसके कोई पॉइंट्स हैं ना एनबीए में, लेकिन फॉर मी एज ए टीचर आई अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and if there are some points for these, Madam Divya Malhan will get 100 out of 100. Thank you so much. So she is the star of our university, and मैं तो फैन हूँ ही इनका, सारी यूनिवर्सिटी भी फैन है, and thank you very much for giving us time for these sessions. Thank you so much, sir. So thanks for coming, and the audience is yours and the stage is yours. Thank you so much, sir. Thanks a lot. A very good afternoon to esteemed Professor Manish Garg and Professor Madhuri and Dr. Jyoti, who is coordinating. Ji, and Dr. Taruna. And Dr. Taruna. And all dear participants. It's indeed a privilege to be part of this program, क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपनी ही यूनिवर्सिटी में इनवाइटेड होते हैं ना, सबसे बड़ा चैलेंज ही वो होता है, क्योंकि हमें आदत होती है आप लोगों से वैसे ही रूबरू मिलने की,
है ना। और प्रोफेसर मुनीश के पास बैठ के ये बातें सुनना उनके मुंह से कि वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मुझे 100 मार्क्स मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे इवैल्यूएशन कहीं से चाहिए नहीं होगा। आई थिंक आई गॉट दोज 100 मार्क्स। और जहां तक सर ने कहा कि प्रोफेसर इज नोन बाय सो मेनी पेपर्स, एकेडमिक रिसर्चेस, और सर ने प्रोजेक्ट्स की भी बात की, तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आई एम अ प्रोफेसर विदाउट प्रोजेक्ट। That is why I was saying मतलब कि वो चीजें मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, बिकॉज हर एक का अपना एक एरिया होता है। हाँ। यूनिवर्सिटी टीचिंग में ना 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ। फर्स्ट इज टीचिंग। ऑब्वियसली जब हम यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं तो वहां पे टीचिंग तो होगी ही होगी। दूसरा होता है रिसर्च, और तीसरा होता है एक्सटेंशन एक्टिविटीज। तो आपको ना ये तीनों मिला के ही कहीं ना कहीं आपकी जो मार्क्स वगैरह हैं, इवैल्यूएशन है, वो होती है। लेकिन जहां तक टीचिंग है उसकी इवैल्यूएशन बहुत ही मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव है। बहुत सब्जेक्टिव है, यस। उसमें कुछ ऐसा इवैल्यूएशन का सर कोई खास क्राइटेरिया है नहीं। क्राइटेरिया है नहीं। तो हमारा फोकस जो है वो ज्यादा रिसर्च और एक्सटेंशन पे रहता है जी। तो मुझे ये लगा कि चलिए ठीक है, अगर ऐसा ही है कि प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ही जरूरी है कुछ चीजें, तो पॉइंट्स आपको इकट्ठे करने चाहिए। पर मेरे हिसाब से मेरा जो ज्यादा एरिया रहा वो रहा टीचिंग और एक्सटेंशन। और जो रिसर्च है वो उतनी कर ली है जितनी मेरे लिए जरूरी है, और उतनी करनी भी चाहिए। पर रिसर्च में मैं ये नहीं कहूंगी कि आई हैव एक्सेल्ड इन रिसर्च। जो मेरे 100 मार्क्स सर ने दिए ना, वो फर्स्ट और थर्ड क्राइटेरिया पे मुझे मिले होंगे। और मुझे इसलिए खुशी होती है क्योंकि सभी लोग रिसर्च नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे अपने आप को प्रिविलेज्ड मानती हूँ कि शुरू से ही यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी असाइनमेंट्स रही मेरे पास। इससे पहले जैसा मैम ने अभी इंट्रोड्यूस भी कराया कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी, तो वहां पे भी मेरे पास स्टूडेंट प्लेसमेंट का एक चार्ज दिया हुआ था। जी। और यहाँ पे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे था। फिर जब मैं यहाँ आई इमसार में 2010 में मैंने एमडीयू को ज्वाइन किया, और यहाँ आने के बाद भी जो इनिशियली डिपार्टमेंट में साल भर के बाद मुझे ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का चार्ज दे दिया गया। तो 8 से 10 साल मैंने डिपार्टमेंट यानी कि इमसार के लिए भी जो है ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स को देखा। तो उस दौरान जो है मेरा ज्यादा जुड़ाव बना स्टूडेंट से, और ये मैंने देखना शुरू किया कि वहां पे डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, डाइवर्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई बच्चा किसी तरह से बिहेव कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन है तो सारे पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो उनसे मेरा इंटरेक्शन क्योंकि ज्यादा हुआ, तो मुझे लगा कि मेरा जो इंटरेस्ट भी बना और जो एरिया बन गया वो स्टूडेंट्स से ज्यादा जुड़ गया। और साथ के साथ क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक मौका मिला कि हम लोग एक कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर करें, और वो थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग एंटर करते रहे, तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज में भी एक मेरा काफी ज्यादा रुझान रहा। तो इसमें बीच वाला जो एरिया है रिसर्च, हाँ, दैट यू कैन गिव मी अराउंड 70-75% मार्क्स ऑन दैट, बट आई डोंट से दैट आई एम 100% स्कोरर ऑन दैट। सो कुल मिला के मैं ठीक ठाक सी टीचर रही हूँ, और स्टूडेंट्स के साथ मेरा जो है काफी ज्यादा जुड़ा रहा है। तो आज का क्योंकि टॉपिक भी सर ने जो है मुझे बड़ा सोच समझ के दिया है, मुझे लगता है सर ना बड़ा प्लान करते हैं अपने यहाँ पे जिनको बुलाते हैं कि किन से क्या कहलवाना है। तो सर ने जो मुझे टॉपिक दिया है वो है स्टूडेंट डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात करेंगे हम लोग। तो आज इस पे चर्चा करेंगे सर। और समय भी क्योंकि मेरे पास काफी दिया हुआ है आपने, तो मैं 5 बजे तक आज आपके साथ हूँ, तो खूब सारी बात करेंगे। हाँ, पीपीटीज मेरे पास कोई ऐसी नहीं है, और मैं ज्यादातर पीपीटीज को नहीं एनकरेज करती, अपनी क्लासरूम टीचिंग में भी नहीं करती, क्योंकि एक इन्वॉल्वमेंट विद द स्टूडेंट्स शुड ऑफ द टीचर शुड बी थ्रू फेस टू फेस। तो फेस टू फेस तो मैं आपके साथ, आप मेरा फेस देख पा रहे हैं, मैं शायद आपका नहीं देख पा रही हूँ। अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे अपनी तो मुझे आपके फेसेस दिख जाएंगे। तो एक बार तो जरूर मिलेंगे हम लोग। अगर आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं सिर्फ इस कैमरा से बात कर रही हूँ। वैसे मुझे इस कैमरा की भी आदत है, क्योंकि जैसा सर ने, मैम ने इंट्रोड्यूस किया मुझे कि आई वाज पार्ट ऑफ दिस, सर थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी देयर। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे, थैंक यू सो मच। तो क्योंकि हम लोग जैसे दूरदर्शन पे रहे और मैंने रेडियो पे भी काम किया, तो रेडियो पे जब हम काम करते हैं तो सामने ऑडियंस नहीं होती है आपके। इसी तरह से दूरदर्शन पे जब आप न्यूज डिलीवर करते हैं तो देयर इज नो ऑडियंस देयर, यू हैव टू कीप ऑन डिलीवरिंग योर ओन मैसेजेस और व्हाटएवर यू वांट टू। तो वो एक एक्सपीरियंस तो है कि हम सिर्फ कैमरा से बात करें, पर अच्छा ये लगता है कि जब हम बात करते हैं दैट इज थ्रू द फेस। तो हम एक दूसरे से अगर उस तरह से बात करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस पर जो स्टूडेंट डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन की जब बात करते हैं, तो मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर की भी इसमें थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है इस वक्त भी जो है उनके जो जुड़ाव है वो स्टूडेंट्स के साथ काफी रहा है। और जब मुझे ये डायरेक्टरशिप दी गई
करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट की, तो उनकी उम्मीद भी थी कि भाई हम जो है हर स्टूडेंट को कोशिश करें कि स्किलफुल बनाएं और उस हर स्टूडेंट को प्लेसमेंट देने की हम कोशिश करें। तो इससे क्या हुआ कि और ज्यादा जुड़ा होता गया। तो हम क्लासरूम्स में जो है ना, वी हैव बिकम मोर एंड मोर, हम क्लासरूम टीचिंग के अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक ना होके हम सेल्फ सेंट्रिक भी होते गए धीरे धीरे। रीजन यही रहा कि जो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो मार्क्स स्टूडेंट्स के फीडबैक के ऊपर तो बहुत कम है। या आप ये कहेंगे कि स्टूडेंट से अगर हम पूछें कि भाई हाँ आप किस टीचर को कितने मार्क्स देना चाहते हैं या आपकी क्या इवैल्यूएशन है, तो स्टूडेंट शायद उतना अभी इस स्टेज पे सक्षम भी नहीं होता है। हो सकता है आप अपनी तरफ से बहुत बेहतर वहां परफॉर्म करके आए, उसको बच्चे को आपने एक दो बार डांट दिया तो उसने कहा नहीं ये टीचर अच्छे नहीं है, तो इसीलिए हम इस इवैल्यूएशन पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करते। लेकिन जब स्टूडेंट पास आउट होके चले जाता है, जब 5-7 साल बाद आपके पास लौटकर उसका कभी फोन आए बच्चों का, या वो किसी तरह से आपसे मिलने आए, जुड़ाव महसूस करें, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ इस स्टूडेंट की लाइफ पे मेरा छोटा सा कोई इम्पैक्ट रहा है। तो उसी चीज के मद्देनजर जो है आज मैं सोचती हूँ कि आप सबसे इस बारे में बात करेंगे। तो एक बार मैं आप सब लोगों का जो चेहरा है वो देखना चाहूंगी। अगर आप एक बारी बारी करके अपनी वीडियोस ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। डॉक्टर कमलेश प्लीज का तो सब लोग क्योंकि अपने कैमरा स्विच ऑन कर लें। हाँ हाँ एक बार कर लीजिए। ओके, आई कैन सी डॉक्टर कमलेश देयर, प्रोफेसर अरुणा इज देयर, डॉक्टर मोहित कुमार इज देयर, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी ऑन किया है, प्रीति जी भी आ गए हैं, और इधर डॉक्टर नमस्कार ज्योति मैम। है। नमस्कार जी। नमस्कार। और डॉक्टर अर्चना जी हैं। 4-5 लोग तो मुझे दिख गए हैं। कई बार क्या होता है ये ऑनलाइन में ना, एक बड़ा कमाल का काम था, मुझे तो मालूम नहीं है, कोविड के दौरान तभी शुरू हुआ था ये सिस्टम ज्यादा। तो माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाज थ्रू माय डॉटर, क्योंकि उसको ज्यादा मालूम था इन सब चीजों का, हमें तब तक ये जूम मीटिंग्स और इनका नहीं मालूम था। शी वाज इन हर 12th स्टैंडर्ड, तो उन जो टीचर्स हैं वो उनको जूम मीटिंग से पढ़ा रहे थे, ट्यूशंस जो थे उनके। तो तब पता चला कि अच्छा ये जूम मीटिंग्स हमें ऐसे ज्वाइन करनी है। फिर यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दी इसमें पहल की और एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया था, तो हम लोग उसके टच में आए। लेकिन एक जो चीज मुझे लगती थी कि जब कभी हम ये सेशंस ऑर्गेनाइज करते थे, तो स्टूडेंट्स की जब क्लासेस भी हमने इस पे की हैं, तो बढ़िया तरीका है अपना ऑन कर दो, तो आपका यह नाम तो आ ही जाता है कि हाँ ये ऑन है। म्यूट कर दिया आपने, वीडियो ऑफ कर दी, और बच्चा आराम से जाके अपने बिस्तर पे लेट गया। अब वो वीडियो चल रही है, टीचर बोले जा रहा है, वो आराम से सो रहा है। तो ये जो चीज है ये हमारी ऑनलाइन एजुकेशन का एक चैलेंज है, क्योंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, डाइवर्सिटी की बात करेंगे, तो ये भी एक एस्पेक्ट उसमें आएगा। तो मेरे 4-5 साथी तो हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, बाकी के जो लोग हैं अगर लंच कर रहे हैं आप तो साथ साथ खोल लीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत पूरी की खुशबू जो है वो आएगी नहीं, लेकिन उसकी जो देखने से ही जो महसूस होता है ना, मुंह में पानी तो आ ही सकता है। तो जो भी आप खा रहे हो एक्चुअली आजकल तो मैम वैसे, वी है ना आर ऑन द वे टू होम। हम घर जा रहे हैं कॉलेज से, मैं रास्ते में समझ सकती अभी। हूँ। बिल्कुल 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 मैं समझ सकती हूँ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जब हम सच को एक्सेप्ट करते हैं ना, सबसे अच्छा दिन ही वो होता है। क्योंकि वी ऑल नो, आप झूठ बोलेंगे, आवरण ओढ़ेंगे, नहीं नहीं हम बहुत बैठे हैं ऐसे और ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी बजाय हम सच बोलें। और हम चलते चलते भी तो लर्न कर सकते हैं। जब हम वॉक करते हैं शाम को, जब तो हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो सीखना तो जो है ना वो कहीं पे भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्लेस और टाइम और एज, वट एवर इट इज। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को थ्रू दिस ऑनलाइन जो है ये माध्यम से हमारे पास ये हासिल करते हैं हम लोग एजुकेशन। अच्छा एक और चीज है, आज क्योंकि मेरे पास 5 बजे तक का टाइम है, तो हम लोग बात करेंगे, ढेर सारी करेंगे, तो बीच बीच में आप लोगों से ना जो मैं है आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट इस तरह से भी करूंगी कि आप लोगों की भी मैं बातें कुछ सुनना चाहूंगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। तो हम लोग कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग से भी करेंगे इस टॉपिक को कवर, और थोड़ा सा तो मैं अपना इनपुट दूंगी ही आपको। तो जहां तक बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट डाइवर्सिटी की। अब चूंकि आप लोग कॉलेज लेवल टीचर्स हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल के भी कुछ लोग होंगे, कुछ कॉलेज लेवल के लोग होंगे, तो स्कूल का तो मेरे ख्याल से कोई यहाँ लेना देना है नहीं इनमें, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, तो शायद स्कूल एजुकेशन को हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। तो हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचिंग की बात करेंगे। तो जहां तक स्टूडेंट डाइवर्सिटी की बात आती है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि सबसे पहले आप डाइवर्सिटी से, स्टूडेंट डाइवर्सिटी से क्या समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा कोई भी एक जना माइक अपना खोल के ये बताए कि स्टूडेंट डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं। एनीवन?
student diversity means ma'am students from diverse directions, socio economic Right. background को लेकर के हो सकता है, IQ लेवल को लेकर के हो सकता है, और जो आजकल हम डिसेबल्ड बच्चों को भी ऐड कर लेते हैं, उनसे भी डाइवर्सिटी बनेगी। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत अच्छा जवाब दिया प्रोफेसर तरुणा आपने। और डाइवर्सिटी का मतलब ही ये है कि अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स, तो वो डाइवर्सिटी जो है वो कितनी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्लासिफाई स्टूडेंट्स इनटू रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज में या इन कॉलेजेस में। जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टूडेंट हमारे पास जो है वो ज्यादातर रूरल स्टूडेंट आता है। अर्बन स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो हमारे पास कंपैरेटिवली कम है। डॉक्टर ज्योति जो है हमारे पास आए हैं। डॉक्टर ज्योति, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट डाइवर्सिटी क्या है? मैम डिफरेंट रेसेस से, डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकता है, और डिफरेंट फिजिकल बैकग्राउंड भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं मैम स्टूडेंट डाइवर्सिटी में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि डिफरेंट रेसेस, जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट रूरल और अर्बन तो हमने क्लासिफाई कर ही लिया, डिफरेंट रेसेस से भी हो सकते हैं। कई बार क्या है, काफी सारे प्रोग्राम्स जैसे वैसे हमारे यहाँ ऑल इंडिया की सीट्स होती हैं, उसमें ऑल इंडिया से कितने बच्चे आ पाते हैं वो एक अलग बात है। पर आजकल हमारे पास जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वेंचर कर रहे हैं, तो काफी सारी जगह हैं जहाँ से नाइजीरिया से, कई बार आपके पास अमेरिकन स्टूडेंट्स भी आते हैं। हमारे पास काफी सारे पीछे अफगानिस्तान और ईरान से काफी स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो ये स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट रेशियल बैकग्राउंड से भी हैं, वहाँ कलर डिफरेंसेस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल ब्लैक्स वाइट्स हर तरह के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। मोहम्मदन स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास हिंदू स्टूडेंट्स हैं। अगर आप कास्ट की बात करेंगे तो कास्ट वाइज भी बहुत सारे हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये तो एक अलग चीज हो गई। इसके अलावा भी डाइवर्सिटी में एक तो हमारा ये तो है ही है जो सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से डाइवर्सिटी है, इसके अलावा भी जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप ह्यूमन डाइवर्सिटी में बात करें तो सबसे पहले डाइवर्सिटी तो मेल और फीमेल की ही है, कि भाई कुछ मेल स्टूडेंट्स होंगे, फीमेल स्टूडेंट्स होंगे, और आजकल ज्यादातर प्रोपोर्शन जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स का आता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि परसेंटेज वाइज फीमेल्स आर एंटरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मोर देन दी मेल मेंबर्स। और ये तो आपका जेंडर बेस्ड हो गया। इसके अलावा भी डाइवर्सिटी जो है दैट विल बी बेस्ड ऑन वेदर यू आर अ ट्रांसजेंडर ऑल्सो। समटाइम्स क्या है, मेल फीमेल है, ट्रांसजेंडर भी है हमारे पास, वो बच्चे भी आपके पास एजुकेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स आ सकते हैं, हमारे पास मेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। हमारे पास फिजिकली चैलेंज में भी कैटेगरीज हो जाती हैं कि कितना फिजिकली चैलेंज है और किस कैटेगरी के हैं। मान लीजिए कोई किसी के पाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, किसी को हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को सुनने में दिक्कत हो सकती है, किसी को दिखने में दिक्कत हो सकती है। तो हर तरह के बच्चे हमारे पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए, और हमें उनका स्वागत भी करना चाहिए। अब तो हमारी जो यूजीसी ने भी ऐसी गाइडलाइंस दी हैं हमें कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज के स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इस तरह से मॉडिफाई किए जाएं कि हम हर तरह के फिजिकली चैलेंज बच्चे को भी अकोमोडेट कर पाएं अपने